جی ناظرین، پروگرام اصل حقائق کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رضوان عاجز آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ علاقہ جڑاوالا کا علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے اور پولیس اسٹیشن روڑالا روڈ کا علاقہ ہے۔ پروگرام اصل حقائق کی پوری ٹیم نے وہاں پہ جا کے دیکھا 357 گاہ میں کیسے بہیمانہ انداز میں ایک معصوم عورت کا قتل کیا گیا۔ ناظرین، یہ ہے ضلع فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا، جس کے دیہی علاقے میں عید کے دوسرے ہی دن پیش آیا ایک اندوہناک واقعہ۔ السلام علیکم سر، پولیس اسٹیشن روڑالا روڈ جی۔ جی سر، جی بہتر جی بہتر۔ السلام علیکم۔ 357 گاہ کی بات ہوئی۔ السلام علیکم۔ کہاں ہوا 357؟ چلے میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں، میں آپ ہی پہنچے جلدی۔ جی عید کی خوشیاں یکدم مات پڑ گئیں جب پولیس اسٹیشن روڑالا روڈ کی حدود میں واقع چیک نمبر 357 گاہ میں قتل کی دل دہلا دینے والی واردات ہوئی۔ ناظرین، شوہر نے کیا اپنی ہی بیوی کا بہیمانہ انداز میں قتل اور یہ سوچ لیا کہ شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن روڑالا روڈ پولیس اسٹیشن کے جوان اور باہمت ایس ایچ او شاہد پنو اور ان کی ٹیم نے اس کی سوچ بنائی ناکام۔ ملزم ہر گناہ گار کی طرح یہ سوچ رہا تھا کہ قانون کے رکھوالے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ ناظرین، قتل کی یہ واردات عید کے دوسرے دن پیش آئی جب ملزم نصیر احمد عین اس وقت جب اس کی بیوی زینب بی بی کے قریبی رشتہ دار اس سے عید ملنے آئے ہوئے تھے اور وہاں سے بھاگ کر قریبی علاقے میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ روڑالا روڈ کی پولیس اس کے پیچھے پیچھے ہے اور اسے تلاش کر رہی ہے۔ عین جب وہ چھپ کر بیٹھا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ قانون کے شکنجے سے اب بچ چکا ہے، اسی وقت ایس ایچ او شاہد پنو اور ان کی ٹیم نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر مقتولہ زینب بی بی کے والدین کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے بھی ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ بچہ مرن والی میری دھی دا تے ساڈے بہت زیادتی تے ظلم ہویا ہے گا، اور ماں لت بنی باہر رڑدی آندی ہے۔ ساڈا جی خدا فیصلہ جی ساڈا ہونا چاہیے، بہت ظلم جی ساڈے نال ہویا جی۔ بچہ جی چھوٹا سارا جڑا ماں نوں روندا بندا رڑدا بندا۔ میری بچی بے گناہ بے دوست سی، میری بچی ماں قتل کر دیتی نے، اون دا بندہ ہاگا کوئی کسے واسطے ان کو جی میری بچی کوئی نہیں۔ ہاں تے او میری بچی کے لیے نا انہوں آندے باہر جا، انہوں آکے جا گواہ پھیر ٹھیک نہیں، ان دا سیر ہی منیا انہیں، ان دا سارا کچھ کیتا انہیں۔ میں بے دوسی بے گناہ میری بچی ہے گئی، کوئی بدیو میں بدی بدیاں، میرا نکے نکے بچے ہیں
ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰ ਭਾਈ ਬਾਪ हैं ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ बहुत जुल्म करते हैं। हमने मकामी लोगों से बात करने की भी कोशिश की। मकामी लोगों ने भी बताया कि बच्ची का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसे बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। मेरे साथ मकामी लोग मौजूद थे जिन्होंने इस बात की गवाही दी है कि वो बच्ची थोड़ी सी उम्र थी, 3 साल का बेटा था, लेकिन उसने बहुत ही जुल्म की तारीख रकम करते हुए ये बेईमाना इक़दाम किया है। क्या किया था उसने? उन्हें बहुत ज़्यादती की, बहुत जुल्म किया, तशद्दुद की है। मासूम आएगी, बहुत गरीब है, इन्होंने तू मैं देने आएंगे मसायन मेरे ना, तो उन्हें जुल्म किया है ना, ज़्यादा इंसाफ होया जावे। ना लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी शरीफ है, बड़ा गरीब ख़ानदान है, तो ये बड़ा हरामज़ादा है, इसने उसने ज़्यादती की है। कोई उसका गुनाह नहीं, जो इल्ज़ाम उसके बाद इस्लामदार ये सब झूठ बोलता और इसका अपना किरदार गंदा है। किसी और जगह तो शादी करना चाहता कि होर नाल शादी मेरी हो जाए और उस नाल इसकी सिटिंग भी है उस बीबी दे नाल, तो बिल्कुल वो दूसरा खानदान बंदा जो बिल्कुल अच्छे ने और शरीफ ने खानदान ठीक ठाक ने। और इहदे नाल ना असीं पुरजोर सिफारिश करने कि इस नाल जिहड़ा इन्हां ने ज़्यादती हुई उसका इज़ाला किया जाए। ईद के दूसरे रोज़ नसीर अहमद नामी शख्स ने जो 357 गाफ पे का जड़ावाला का रिहायशी है, उसने अपनी बेगम को गला दबा कर कत्ल कर दिया। जिसने कत्ल किया हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये जनाजे पर और कत्ल करके इकरार हो गया। पुलिस को इत्तला मिली थी तो हमने टाइमली जो है वो डेड बॉडी को कब्जे में लिया और उस पर तमाम जो हमारे फोरेंसिक्स होते हैं वो मुकम्मल किए और उसके बाद हमने रेड करके एक करीबी गाँव से हमने वहाँ के मकामी लोगों के ताउन के साथ इसको अरेस्ट कर लिया। ये जो है वो ये अलमनाक वाक़या जो है ये 25 तारीख वाले दिन यानी कि ईद के दूसरे दिन ये पेश आया। ये मैं उस वक्त थाना में मौजूद था तो 15 की ना एक कॉल मौसूल होती है हमें 357 का नीलियावाला की, नीलियावाला की कॉल मौसूल होती है। नीलियावाला की कॉल मौसूल होने के बाद होमिसाइड की कॉल मौसूल होती है कि एक औरत है तो वो घर में उसको किसी ने कत्ल कर दिया। हम जो है 15 की कॉल के बाद मेरी मोबाइल टीम पहले वहाँ पहुँचती है, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ। क्राइम सीन पे हम पहुँचते हैं तो जो मकतूला ज़ैनब है वो एक चारपाई पे लेटी हुई है और चारपाई पे लेटी हुई है। अपेरेंटली उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं था, लेकिन वो उसकी डेथ उस वक्त तक हो चुकी थी। जब हम पहुँचे हैं तो जाके जो क्राइम सीन को पहले कॉर्डन किया, PFSA टीम को कॉल किया, क्राइम सीन टीम को जो पुलिस की हमारी क्राइम सीन टीम यूनिट है, क्राइम सीन यूनिट उनको कॉल किया। वहाँ जाके लोगों से पूछताछ की है तो पहले तो मामला बिल्कुल जो है ना वो ब्लाइंड मर्डर का लग रहा था। तो जब हम पहले हमारा मोबाइल अफसर पहुँचा तो उसके बाद उसका हस्बैंड जो था नसीर वो मौके पे मौजूद था। उससे पूछा, उसने कहा जी मैं तो दर्जियों का काम करता हूँ तो मैं ऐसे निकला हूँ तो मैं आया हूँ तो मुझे पता नहीं इसको क्या हुआ है, मैंने आके देखा तो उसका जिस्म ठंडा हुआ पड़ा था, मैं आया हूँ तो ये इसकी डेथ हो गई। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने अपने मोबाइल अफसर को कहा कि जो उसका हस्बैंड है घर में कौन कौन है। घर में चूँकि एक छोटा सा बच्चा है उसका नाम हसन है, 3 साल पहले शादी हुई थी और 2 साल का छोटा बच्चा है हसन। एक सिर्फ हसन ही घर में मौजूद होता, उसके अलावा इनके घर में कोई भी बंदा दूसरा मौजूद नहीं होता। मैंने जाकर उसके हस्बैंड का पूछा कि आपका जो हस्बैंड है उनसे मेरी उसकी मुलाकात करवाएं। जब इसके हस्बैंड का ज़ैनब का पूछा तो वो वहाँ से गायब था। उसको जब वो गायब हुआ तो वो हमारा जो है ना प्राइम सस्पेक्ट जो उसका हस्बैंड ही था, क्योंकि घर में ये मियाँ बीवी और एक छोटा बच्चा था, इसके अलावा इनके घर में कोई नहीं रहता था। तो जब हमने कहा तो फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से हमें पता चला कि वो नीलियावाली से जो पतलियाँ वाले गांव को सड़क जाती है उस तरफ उसको जाते देखा। उसको हमने चेज़ किया, चेज़ करके हमने उसको एप्रीहेंड किया, एप्रीहेंड करके हमने गिरफ्तार किया। तो बिल्कुल इनिशियल इंटेरोगेशन में वो बंदा मान गया कि उसने जो है ना वो अपनी बीवी का जो है ना वो गला दबा के मारा है। तो रीज़न ऑफ दैट मर्डर जब उससे इंटेरोगेशन में पूछा गया कि क्यों उसने मारा है तो उसने कहा जी मैं एक और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने मुझे कहा कि पहले अपनी जो पहली बीवी है उसको आप कत्ल कर दें, मार दें तो फिर मैं आपसे शादी करूँगा। तो हमने फिर उसे सेम डे उसको अरेस्ट किया
تو अरेस्ट करके वो अभी रिमांड के बाहर है, ठीक है, उसका इंशाल्लाह चालान मुकद्दर होगा और उसको जो करार वाकई सज़ा है इस जुल्म की इंशाल्लाह दिलवाएंगे। जड़ांवाला की पुलिस इस बात के लिए पुरज़्म है कि हम किसी भी किस्म का सोशल क्राइम, वायलेंट क्राइम, हीनस क्राइम जो है जब भी होता है तो हम बाकी तमाम गैर ज़रूरी काम छोड़कर और अपनी तमाम फोकस जो है उसकी तरफ कर लेते हैं। हमने कई कत्ल हैं यहाँ पे जो कि इस किस्म के घरेलू तनाज़ात की वजह से होते हैं और उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 7 days हम बंदा भी ट्रेस कर लेते हैं, हम वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर कर लेते हैं और हम बंदा पकड़ भी लेते हैं। रिसेंटली जो है वो 2 ऐसे हमारे यहाँ वाक़यात हुए हैं जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 3 days रिकवर कर लिया है हर चीज़। और रिसेंटली एक तेज़ाब फेंकने का वाक़या भी हुआ है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 400-450 किलोमीटर मुलज़िम का पीछा करके उसको बहावलपुर से आगे के इलाके से हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया। तो जड़ांवाला की पुलिस जो है इस काम के लिए लोगों के ताउन के साथ पुरज़्म है कि हम किसी भी किस्म के हीनस क्राइम को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने मुकम्मल रिसोर्सेज लगा कर उसको ट्रेस करके लोगों तक इंसाफ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा काम किया और जी उसे गिरफ्तार किया है और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया, बड़ी क्विक रिस्पॉन्स है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, हमारा SHO रुडाला जो है वो एक यंग एनर्जेटिक लड़का है। वो हर हीनस क्राइम पे ख़ुद अपनी टीम के साथ आगे बढ़कर काम करता है और इसीलिए जब आपकी टीम का लीडर जो है वो इंटरेस्ट लेता है तो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आते हैं। माशाल्लाह उसने इस केस में भी और इसके बाद भी 1-2 केसेस में खुद आगे बढ़कर खुसूसन कत्ल के केसेस में मुकदमा ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। जी, जड़ांवाला पुलिस को हम खुद भी पैगाम दे लेते हैं मगर मीडिया के ज़रिए जो भी देखे हम आवाम को पैगाम देना चाहेंगे कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो जो कि वो रिपोर्ट करना चाहते हों तो हमारा मैंने अपना सेल नंबर जो है और व्हाट्सएप नंबर वो जगह जगह पे आवेज़ा करवाया हुआ है, वो उस पर मैसेज कर दें, कॉल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी और उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे मुनशियात फ़रोशों का और इस तरीके से मज़ीद जो लोग काम ख़राब कर रहे होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन सब पे अभी तक जो है वो एक्शन लिया। नाज़रीन, असल हक़ाइक़ की पूरी टीम ने कोशिश की कि आज के इस वारदात के मुतालिक असल हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएं। टीम असल हक़ाइक़ आपके साथ हमा वक्त तैयार है फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ। अपना फ़ोन उठाइए, जहां पे आप जुल्म देखें व्हाट्सएप करें और असल हक़ाइक़ की पूरी टीम आपकी दहलीज